Good morning, students. Myself, Dr. Sushma Gupta, Associate Professor, Sohanlal DAV College of Education, Ambala. Today, I'm going to discuss with you trial and error theory of learning. This is the part of the paper third, that is learning and teaching, unit number 2. Now, let us discuss what is learning. Learning क्या होती है? Learning means जानना, सीखना. क्या चीज सीखना? To get the answers of all these questions. क्या हो रहा है? What is happening? Why it is happening? How it is happening? Who said this? When this happened? Where are you? Like answering to all these questions. What is learning? Learning means questioning and then getting the answers of all these things, right? Now let us start with the theory. Theory is trial and error theory. Learning occupies an important position in the whole field of psychology. It is impossible to understand the behavior of the individual without knowing the basic principles of the learning. We all know what is learning. Learning means change in the behavior of learner. So, अगर हमने learner का behavior change करना है, तो हमें किस चीज की जरूरत है? किस चीज की जरूरत है जानने के लिए? Learner की जरूरत है. लर्निंग की थ्योरीज की जरूरत है. तो बिना थ्योरीज के हम टीच नहीं करा सकते ना. So for teaching, knowing this is very important. Learning is improvement of behavior. As I have already told you, to understand the process of learning, psychologists have tried to put some light on this phenomena by performing experiments and formulated various theories. See what the children are doing. What are they doing? This is motor learning. पेंसिल से आर्ट कर रहे हैं, है ना? कैरिंग द बुक्स, स्टडिंग द बुक्स. ये मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हैं. The various learning theories put forward are number 1. दो मेन कैटेगरीज हमारी डिवाइड होती हैं. पहली होती है SR theories of learning. SR theory means stimulus and response theory of learning. इसके अंदर दो आती हैं, कंडीशनिंग थ्योरी एंड कनेक्शनिज्म थ्योरी. फिलहाल आपको ये नाम समझने जरूरी है. जो ऐसा थ्योरी है वो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी. और इस स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के दो पार्ट हैं, कनेक्शनिज्म एंड कंडीशनिंग. दूसरी थ्योरी का जो पार्ट आता है वो कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी है. कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी के मतलब क्या हुआ? कॉग्निशन से रिलेटेड. इसके अंदर मेंटल एबिलिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, these abilities are discussed here. This theory, trial and error theory, was given by American psychologist E.L. Thorndike. इस थ्योरी के अलग अलग नाम है. कुछ इसको बोलते हैं प्लेजर पेन थ्योरी. Some says it is stimulus response theory. Right. This is about Thorndike. The learning theory of Thorndike represents the original SR framework of behavior psychology. Learning is the result of association. As per Thorndike says, it is an association between two things. One is stimulus and another one is response. Such association is known as habit and it becomes strengthened or weakened. Weak हो जाती है, strength हो जाती है by the frequency and the nature of SR theory. यानी learning क्या है? According to Thorndike, एसोसिएशन है. स्टिमुलस किया, सामने से रिस्पॉन्स आया. हमने किसी को सामने से कोई बच्चे को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है, बच्चा रिस्पॉन्स करता है ना, या तो पीछे हट जाएगा, साइड में हो जाएगा, है ना? तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है. तो बार बार जब स्टिमुलस रिस्पॉन्स होता है तो उससे हैबिट बन जाती है. और हैबिट जो है वो वीक, और जो है वो हैबिट जो है स्ट्रेंथ कब मिलती है? जब वो फ्रीक्वेंसी
एस और आर जो है वो बार बार सामने। ही हैज डन दिस एक्सपेरिमेंट ऑन कैट्स। ये देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैट्स हैं। उसने एक पजल बॉक्स बनाया। पजल बॉक्स के अंदर ये देखो, पजल बॉक्स में कैट नजर आ रही है। ऊपर से पजल बॉक्स के अंदर क्या नजर आ रहे हैं। उसने इस तरह से मैनिपुलेशन किया कि अगर वो बिल्ली किसी दरवाजे के अंदर बंद है, अगर वो लैच के ऊपर उसका पैर पड़ जाता है तो वो दरवाजा जो है खुल जाएगा और बिल्ली, ये देखिए दिख रहा है इसमें, कैन यू सी बॉक्स, कैट, और उसने वो स्ट्रिंग्स को पुल करना है, वो नीचे लगे हुए स्ट्रिंग्स को पुल करेंगे, पुल करते ही वो दरवाजा खुल जाएगा और बाहर कैट का फूड पड़ा है। फूड क्या है, फिश, ठीक है। A fish was placed outside the box. It is, it smells work as a strong motive, strong force for the cat to come out of it. उसको बाहर खुशबू आ रही है फिश की, और वो उसके लिए एक मोटिव बन गया, एक फोर्स बन गया कि मुझे बाहर निकलना ही निकलना है और ये मछली को, फिश को पकड़ के खाना खाना है। कॉन्सिक्वेंसली द कैट मेड वेरियस पॉसिबल एफर्ट, बहुत उछल कूद मचाती है। कैट ट्राइज टू स्क्वीज, बीच में से जो ओपनिंग है उसमें से स्क्वीज करके निकलना चाहती है कि मैं निकल जाऊं कैसे भी। अपने क्लॉज से, पंजों से बाइट करती है बार्स को कि टूट जाए और मैं बिल्ली उसको पकड़ लूं। इट ट्रस्ट इट्स paws through every opening and claws at everything it reaches. It made number of random movement and by chance latch was manipulated. She came out finally and got its reward. यानी जब वो उछल कूद मचा रही थी तो गलती से उसका पैर उस लैच पे पड़ गया और लैच पे पड़ते ही वो दरवाजा खुल गया और उसने, बिल्ली ने वो फिश को खा लिया। It made a number of random movements and by chance the latch was manipulated, she came out and finally got the reward. He observed that after a series of successive trials, cat became increasingly efficient in getting out of the box. The number of errors, जितनी बार नेक्स्ट डे फिर उसने रखा, थर्ड डे रखा, फोर्थ डे रखा, और लास्ट में एक टाइम ऐसा आ गया कि जैसे ही उसको अंदर, बिल्ली को उसके अंदर डाल रखते पिंजरे में, बाहर फिश रखते, वो फटाफट उस लैच पे पैर दबाती और निकला। यानी जितनी उसने प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस से उसके नंबर ऑफ एरर्स जो थे वो रिड्यूस होने शुरू। देखिए ये बिल्ली का हमने दिखाया, उसको डाला, डालते ही बाहर आ गई। रैंडम मूवमेंट ऑफ द कैट, ठीक है। द एक्सपेरिमेंट सम्स अप। अब हमें एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है। पहली चीज पता चलती है, जो भूख है वो क्या है, हंगर क्या है, उसका ड्राइविंग फोर्स है। और उसका गोल क्या है। अगर उस बिल्ली भूखी नहीं होती, उसका पेट भरा होता, बाहर कितना भी सामान पड़ा हो, फिर वो अंदर सोई रहती। हम देखा होगा आप लोगों ने, हमारा किसी दिन हम फास्ट रखते हैं या खाना, जब हमारा लंच का टाइम होता है तो हम सड़क पे जा रहे होते हैं तो हमें सारी जगह लंच बनने की खुशबू आने शुरू हो जाती है। या बाजार जाते हैं तो किसी दिन फास्ट होते हैं, हमें पता है हमने नहीं खाना, आगे पीछे हमें कोई चाट वाले की दुकान नहीं दिखाई देती, लेकिन जिस दिन व्रत होगा उस दिन नजर आ जाती है। तो हंगर इज अ ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। जितनी ज्यादा हंगर होगी उतनी ज्यादा नजर किस पे रहेगी, फूड पे रहेगी। गोल क्या है उसका, टू गेट दी फूड, कैसे भी उस पिंजरे से बाहर निकलूं और खाना पकड़ लूं। ब्लॉक क्या था, ब्लॉक क्या था कि बिल्ली जो है वो पिंजरे के अंदर बंद है, ठीक है। दैट वाज दी ब्लॉक। अब चांस स्ट्रक्चर्स क्या है इसके अंदर, उसमें बार बार उसने सेलेक्ट किया, बहुत सारे ऑप्शंस थी। कभी वो कूद रही थी, कभी वो ये जो बार्स थी उनको काट रही थी, कोशिश कर रही थी किसी तरह से बीच में से निकला हो, कैसे भी निकला हो। तो उसने बहुत सारे चांस जो है वो करने शुरू किए, लेकिन लास्ट में उसको पता चल गया कि अगर यहाँ पैर रखूंगी तो वो लैच से दरवाजा खुल जाएगा और खुलने से मैं बाहर निकल आऊंगी। एट लास्ट it eliminates all the incorrect response and become active to open the door without an error. Got the thing? तो इसमें हमने क्या चीजें पढ़ी, ड्राइविंग फोर्स चाहिए, भूख होनी चाहिए, गोल क्या है, खाना मिलना,
ब्लॉक किया है, वो पिंजरे में बंद है, यानी चैलेंजेस क्या है, चांसेस ऑफ सक्सेस क्या है, उसको सेलेक्ट करना है। इतने सारे रिस्पॉन्स में से कौन सा रिस्पॉन्स सही है, और उसके बाद उसको उस रिस्पॉन्स को that learning of cat in a puzzle box is basically formation of direct connection between the stimulus and the response. यहाँ पे food क्या हुआ, stimulus. Food is stimulus here. Act as a positive reinforcement. When he placed food outside the box, he noticed that the cat learned to escape faster than when no food was placed outside. यानी स्टिमुलस उसको फूड है तो वो रिस्पॉन्स कर रही है, फूड नहीं है तो उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रही। लर्निंग इज नथिंग बट स्टैम्पिंग इन of correct response and stamping out of incorrect response through trial and error till it gets satisfactory response. थॉर्नडाइक ने क्या कंक्लूड किया? थॉर्नडाइक ने कंक्लूड किया कि जो फूड है, लर्निंग जो फूड है वो स्टिमुलस है, वो उसके ऊपर पॉजिटिव रीइंफोर्स कर रहे हैं और उस फूड को देख के बहुत रिस्पॉन्स कर रही है। और अगर हम बार बार हिट और ट्रायल मेथड करते रहते हैं, तो ट्राई करते रहते हैं, कहते हैं ना ट्राई 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 एंड यू विल सक्सीड। ठीक है, तो जितनी जितनी बार वो ट्राई करेगी, प्रैक्टिस करेगी, उतने उसके नंबर ऑफ एरर्स कम हो जाएंगे, और जब नंबर ऑफ एरर्स कम हो जाएंगे तो उसको सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स जो है मिल जाएगा। एक स्टिमुलस है और बहुत सारे उसने रिस्पॉन्स किए, उन रिस्पॉन्सों में से एक रिस्पॉन्स उसका ठीक है, तो अब क्या होगा, स्टिमुलस तो फिक्स है, उसका भूख लगी हुई है, उसको फिश चाहिए, फूड चाहिए, रिस्पॉन्स बहुत सारी करी थी, उनमें से जिस रिस्पॉन्स से वो स्टिमुलस तक पहुंच गई वो उसका क्या हुआ, satisfactory response. That means animal makes some responses, the animal is rewarded, then the response is learned. If it is not rewarded, the responses disappear. यानी अगर वो बाहर निकल आती है, उसके बाद बिल्ली नहीं हम देते, तो वो 2-4 दिन के बाद वो उछल कूद करना ही बंद कर देती है, कहती है मुझे तो बाहर निकलना ही नहीं, वहां कुछ मिलना तो है नहीं, बाहर ऐसे ही रखा हुआ है इन्होंने। We learned by making trials, mistakes, this experiment for future so that the wrong moves can be eliminated. This tells कि जो हमारे wrong moves हैं वो हम eliminate करते हैं। He called this learning by selection and connecting, as it provides an opportunity to select the right response, correct response and associate with the stimulus. Now what are the different principles? The stimulus can be in the form of motive, need, स्टिमुलस किन किन फॉर्म्स में होता है, मोटिव की फॉर्म में, नीड की फॉर्म में, ड्राइव की फॉर्म में, टू रीच द गोल, इट इम्पेल्स वन टू बी एक्टिव, टू परफॉर्म एक्टिविटी। ठीक है ना, जितनी बड़ा हमारा गोल होगा, जितना सामने गोल, फिश सामने पड़ी होगी तो ही वो उछल कूद मचाएगी ना, तो जितना बड़ा हमारे पास ड्रीम होगा, जितना बड़ा गोल होगा, डिजायर होगी, उसी के अकॉर्डिंगली हम रिस्पॉन्स करेंगे। In order to achieve goal, the individual makes number of responses. The wrong ones are automatically eliminated. In this manner, progressive elimination of unsuccessful and irrelevant responses are taken place. The final response, which helps in achieving the goal, has a strengthening effect. यानी इस प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि हमारे पास गोल बहुत मजबूत होना चाहिए, हंगर बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अगर हम हंगरी नहीं होंगे, रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। हंगर मीन भूख, कोई चीज हम अचीव करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो जितनी बड़ी हंगर होगी उतने ज्यादा रिस्पॉन्स करेंगे। अगर बिल्ली हंगरी नहीं होगी, वो रिस्पॉन्स नहीं करेगी। तो जब हम हंगरी होंगे तो रिस्पॉन्स करेंगे। उन रिस्पॉन्सेज में से कुछ सही रिस्पॉन्स करेंगे, कुछ गलत रिस्पॉन्स करेंगे। जो गलत होंगे, जिनसे हम अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, वो एलिमिनेट करते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। और जो सही होगा, जो सही डायरेक्शन होगी, उस डायरेक्शन को, उस रूट को, बिल्ली को पता चल गया कि इस
जगह पैर रखना है तभी दरवाजा खुलेगा. So this is the educational, or you can say these are the principles of trial and error theory. And in the next class, we are going to learn about what are the educational implications.